Hello my dear students, very precious good morning to all of you. Myself Dr. Sanjay Singh, biology teacher, Subra Singh Children Academy, Argopur, Kalan, Jaunpur. I told you detail about the Krebs cycle in previous lectures, but today now we are going to discuss the new content of these chapters, that is known as electron transport system and oxidative phosphorylation. So first of all, this metabolic pathway, this is very important metabolic pathway, takes place inside the mitochondria. Mitochondria के अंदर होती है and produces a very large amount of energy. This is the very important metabolic pathway, takes place in the living things, and this metabolic pathway are very important for examination point of view as well as competition point of view. So first of all, what is the characteristics of and what is the features of the electron transport system and oxidative phosphorylation? Means both the metabolic pathway takes place in inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane. This is the first important property of this metabolic pathway, because this cycle takes place on the inner membrane of the mitochondria. And which type of क्या क्या इसमें हो सकते हैं, which type of event takes place in ETS में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर reduced form of the coenzymes, जितनी भी reduced form of the coenzymes, reduced form of coenzymes जो ऑप्टेन फ्रॉम डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, वह कोएंजाइम्स क्या होगी, NADH2 एंड FADH2 और ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म that is known as NAD और FAD, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाती है, प्लस प्लस में आप कर सकते हो. मीन्स ऑल द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे लाइक क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस से भी हम उस पर डिटेल में बात करेंगे. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स, ऑल द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स आर ऑक्सीडाइज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडाइज्ड होती है. सो देयर दिस पाथवे इज नोन एज, दिस ETS इज आल्सो नोन एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन. इट इज आल्सो नोन एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन. इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम. तो ETS इज आल्सो नोन एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन. इट इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी चेन्स. रेस्पिरेटरी चेन, ये रेस्पिरेटरी चेन का मेन मेटाबॉलिक पाथवे है, बिकॉज वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स they are present on the inner membrane. They show oxidation and reduction reaction, therefore releases more amount of energy. So this pathway is also known as respiratory chain. ये respiration के लिए बहुत important chain माना जाता है, ठीक है. ड्यूरिंग दिस पाथवे, जब ये होता है, ड्यूरिंग दिस पाथवे पाथवेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू next electron carrier. So therefore this pathway is known as electron transport system. क्यों इसको electron transport system नाम पड़ा है? Because in this metabolic pathway electron transfer from one electron carrier to next electron carrier or another electron carrier, and all the electron carriers, they are present on the inner mitochondrial membrane. The electron transport systems show ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन को शो करेगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन.
Oxidation and reduction reaction is also known as redox reaction. Also known as redox reaction को भी नाम से भी हम जानते हैं. क्लियर? ये तो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. व्हाट डू मीन्स बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मीन्स क्या होता है? मीन्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मीन्स होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी. सिंथेसिस ऑफ एटीपी थ्रू फ्रॉम एडीपी प्लस पीआई, फ्रॉम एडीपी प्लस PI in organic phosphate. This process is known as oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. देखो ये दो जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं दोनों को मैंने लिंक करके बता रहा हूं. क्यों? क्योंकि बोथ द मेटाबॉलिक पाथवे takes place on the inner mitochondrial membrane and both the pathway they are coupled or linked with each other. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसी समय एटीपी भी जनरेट होती है ऑन द सेम साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज नोन एज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोथ द मेटाबॉलिक पाथवे टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ साथ होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें आता है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन कैरियर दे आर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द 4 complexes present on the inner mitochondrial membrane, complex 1, 2, 3, 4 in electron transport system. पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात. इन ETS consist 4 complexes of electron carriers present on inner membrane of mitochondria, present on inner membrane. और उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? द complex first is known as NADH dehydrogenase. NADH dehydrogenase. This is the first complexes here. Here the first complexes present in here. Here the complex 1 in here. NADH2 और oxidized. यहाँ पर क्या ऑक्सीडाइज होगी? ये डिहाइड्रोजनेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 का क्या होगा? ऑक्सीडेशन करेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज द कॉम्प्लेक्स 1. द कॉम्प्लेक्स सेकेंड is also known as succinate dehydrogenase. और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? FADH2 आर ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ दिस, इसके थ्रू रिस्पॉन्सिबल. हियर इज द कॉम्प्लेक्स सेकेंड सक्सिनेट, दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट एट द टाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल. अभी हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड द थर्ड कॉम्प्लेक्स is known as, here the complex third is here cytochrome, yes, cytochrome B/C1 complex. ये स्पेशली जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं. इलेक्ट्रॉन कैरियर ये केवल इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे, ऑक्सीडेशन में रोल प्ले नहीं करेगा. और इलेक्ट्रॉन प्रोसेस फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन carrier to next electron carrier. Fourth is complex fourth. In complex fourth is known as
cytochrome C oxidase, this is the complex fourth. ये चार जो complexes होते हैं they are mainly role in electron transport system. Another complex is also present on the inner mitochondrial membrane, that is known as complex fifth, that is known as ATP synthetase complex. ये जो कॉम्प्लेक्स होता है मेनली इन्वॉल्व फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, मीन्स यह जो कॉम्प्लेक्स होगा बेसिकली यूज्ड इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स होता है ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. तो आप कह सकते हो 5 different complexes they are present on the inner mitochondrial membranes and they play a very important role for electron transport system as well as oxidative phosphorylation. Next, अब एक क्वेश्चन ये होता है, मैंने पहले भी बोला था कि व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या रोल होता है. ऑल द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स become oxidized in electron transport systems, oxidized होती है as well as liberated energy in the form of ATP. अब ये बात आती है कि वह जो कोएंजाइम्स हैं either NADH2 और FADH2 वह कहाँ से आता है ETS में, अब उस पर हम बात करेंगे. टोटल नंबर ऑफ reduced form of NADH2 and FADH2 obtained from following pathways. कितना टोटल हो जाएगा. इन glycolysis 2 NADH2 produced from glycolysis. In oxidative decarboxylation 2 NADH2 produced. In Krebs cycle produces 6 NADH2 and 2 FADH2. तो आप ये देख सकते हो, इसके पहले जो हमने डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे की बात किया इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में, वहाँ पर जो कोएंजाइम्स थे either NAD or FAD become reduced in the form of NADH2 or FADH2. And all the reduced form of the coenzymes enter inside the electron transport system. After that, all the reduced form of the coenzymes become oxidized. वो ऑक्सीडाइज होंगे. तो आप ये देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो reduced form of coenzymes obtained from Krebs cycle. It means जहाँ पर reduced form of the coenzymes होगा, it means ऑक्सीडेशन होगा. तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन takes place in the Krebs cycle. ये Krebs साइकिल में सबसे ज़्यादा होगा है. और अगर साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस की बात की आफ्टर EDS, तो हमने बताया था Krebs साइकिल प्रोड्यूसेस ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो बिकॉज द नंबर ऑफ reduced form of the coenzymes is more in comparison to glycolysis and oxidative decarboxylation. तो अगर इसको हम टोटल करते हैं तो 6 + 2 + 2 टोटल कितना हो जाएगा 10 NADH2 produced from different metabolic pathway and 2 FADH2. If this reduced form of the coenzyme से enter into the electron transport system, अगर वो ETS में जाता है, all the reduced form of the coenzymes become oxidized. 10 NAD plus releases 30 ATP. 30 ATP कैसे हुआ? क्योंकि बिकॉज द 1 NADH2 प्रोड्यूसेस 3 ATP. ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. 1 NADH2
1 NaDH2 देन बिकम ऑक्सीडाइज जब होगी NAD में कन्वर्ट होगी, NAD प्लस रिलीजेज 3 ATP, वह रिलीज होगा, अभी हम डिटेल में इस पर आगे बात करेंगे। तो 10 हो गया तो कितना हो जाएगा 30 ATP। 2 FADH2 व्हेन इंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर वही TS में जाता है देन कन्वर्टेड इनटू 2 FAD प्लस 4 ATP। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ 4 ATP? बिकॉज द 1 FAD as 2 when enter into the electron transport system then converted FAD plus 2 ATP। एक FAD जो होती है 2 ATP रिलीज करती है, तो 2 कितने करेंगी 4, तो 30 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 34 ATP जो होती है आउट ऑफ 38। ग्लूकोज से कितने ATP जनरेट होती है 38, तो उस 38 में 34 ATP जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओनली 4 ATP जनरेटेड कहाँ से हो रही है, जो पीछे के जो साइकिल थे 2 ATP जनरेटेड फ्रॉम क्रैब्स साइकिल एंड 2 ATP जनरेटेड फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। रेस्ट 34 ATP दे आर जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप ये कह सकते हो कि ETS प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रोडक्शन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज ATP। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या मैकेनिज्म होता है। अभी तक हमने पूरा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अब मैं सारा जो बात करूंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने क्या कहा कि रिड्यूस फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स, वो रिड्यूस फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स क्या होगा, आइदर NADH2 और FADH2। तो ये जो NADH2 दे ऑक्सीडाइज, या पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होगा NADH डिहाइड्रोजनेज। दिस इज द कॉम्प्लेक्स 1, ये क्या था कॉम्प्लेक्स 1 है, हियर इज द कॉम्प्लेक्स 1। अब इसी चीज को आप देखो यहाँ पर, हियर इज द कॉम्प्लेक्स 1। reduced form of the coenzyme से जब enter on the inner mitochondrial membrane, at this time complex 1 play a very important role for the oxidation of NADH2 into NAD plus में ऑक्सीडाइज कर दिया। therefore जब ये इसमें ये कन्वर्ट करता है, तो जब इसको ये ब्रेक करेगा तो NADH2 का जब ब्रेक डाउन होगा ETS में विद हेल्प ऑफ दिस एंजाइम्स, तो NAD प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 बाहर जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होती है, दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर अगेन स्प्लिटेड 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ये द प्रोटॉन एंड हियर इज द इलेक्ट्रॉन में यही होगा। और ये जो प्रोटॉन होता है गोज टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में गया कंबाइंड विथ हाफ O2 के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर, ये जो 2 प्रोटॉन्स होते हैं टू फॉर मेटाबॉलिक वाटर्स में जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर को जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है देन रिलीजेज ए इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल पिकअप बाय द फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, दिस इज द इलेक्ट्रॉन कैरियर, दे आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स 1। आफ्टर दैट ये पहले क्या होगा रिड्यूस होगा, देन बिकम ऑक्सीडाइज, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन ये आगे बढ़ते जाएंगे, ट्रांसफर टू आयरन प्लस सल्फर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड देयर। तो और आयरन एंड सल्फर एक ऐसा कंपाउंड होता है, मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आप देखो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, केवल फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, एवरी आप देख सकते हो, नॉट फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हैविंग आयरन एंड सल्फर कंपाउंड, वहाँ पर आयरन और सल्फर कंपाउंड। तो आयरन एंड सल्फर इज व्हाट, आयरन एंड सल्फर इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया टू यूबिक्विनोन, द यूबिक्विनोन्स दे आर प्रेजेंट, ध्यान देने की बात है कि ये प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जैसे इलेक्ट्रॉन को पिकअप करता है देन यूबिक्विनोन बिकम रेड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन H2 में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर दैट देन अगेन रिलीजेज इलेक्ट्रॉन, देन बिकम ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन पिकअप बाय द कॉम्प्लेक्स थर्ड
first electron carrier, that is known as cytochrome B. And from where cytochrome B, the electron transfer to the FES, FES to cytochrome B1 and B1 to cytochrome C. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात आ रही है कि साइटोक्रोम सी, अभी आप देखो सब अंदर की तरफ होती हैं, बट जो साइटोक्रोम सी जो होता है, ये हम NADH2 की बात कर रहे हैं। साइटोक्रोम सी ये जो होता है प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा। और एक तरह से ये कैसा होता है, मोबाइल इन नेचर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर क्यों बोला गया, क्योंकि बिकॉज दिस साइटोक्रोम सी ये क्या करता है, ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड टू कॉम्प्लेक्स फोर्थ में ये ट्रांसफर कर रहा है। ये बाहर की तरफ होता है और ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड टू कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं बात बताने जा रहा हूँ कि अगर हमने क्या कहा है कि दो तरह के रिड्यूस फार्माको एंजाइम्स हो सकते हैं, NADH2 और FADH2। तो NADH2 का शुरुआत कहाँ से हुआ, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ, नॉट इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स 2। The complex 2 only involve for FADH2 oxidation, उसके reduced form of the कोएंजाइम से कि ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्व हुआ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तक इलेक्ट्रॉन पहुँचा। इन द फोर्थ कॉम्प्लेक्स अगर आप देखोगे, हैविंग बोथ द एंड्स, अगर दोनों एंड की तरफ देखोगे, हैविंग कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आपको होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रॉन पिकअप बाय द कॉपर्स, ये कॉपर के एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन हियर एंड दिस इलेक्ट्रॉन देन ट्रांसफर टू साइटोक्रोम A to cytochrome A3 and A3 to copper and copper then electron transfer to half O2। तो अगर आप हम लोग ये बात किया जाए तो हाफ O2 इज व्हाट, हाफ O2 क्या है, हाफ O2 इज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, lost electron carriers, they are present on the inner mitochondrial membrane। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, इन मैट्रिक्स एरिया ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स प्रोटॉन्स, यहाँ पर 2H+ होती है, रिएक्ट विथ देम टू फॉर्म ए मेटाबॉलिक वाटर से बनते जाते हैं। क्लियर, ये तो था फॉर NADH2। फॉर FADH2 के लिए क्या होगा, वैसे वो भी बहुत सिंपल ही होगा। फॉर FADH2 के लिए क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहले ऑक्सीडाइज होगा, FAD में ऑक्सीडाइज हुआ, फिर ये जो ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन किसको दिया, FMN, फिर इलेक्ट्रॉन इससे किससे जा रहा है, FES, फिर इसको किससे जा रहा है, यूबिक्विनोन्स, फिर यूबिक्विनोन H2, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो ये द सक्सिनेट दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट्स एट द इन द क्रेब्स साइकिल में ही बनता है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू FMN, FMN टू FES, FES टू यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन टू UBQS2, फिर देन बिकम ऑक्सीडाइज, फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया, साइटोक्रोम B, फिर इलेक्ट्रॉन FES, साइटोक्रोम B1, साइटोक्रोम B1, फिर साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C, फिर किसको जा रहा है, CU, CU से साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, A3 से CU, CU टू हाफ O2 तक ये पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर फॉर FADH2 के लिए कॉम्प्लेक्स 1 इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट नॉट इन्वॉल्व फॉर ऑक्सीडेशन, ध्यान देना। तो यहाँ पर कौन सा होगा,
2, 3, 4 are involved for oxidation of FADS2. तो इस तरह से इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स. क्लियर? नेक्स्ट. अब ये बात आती है कि जब NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या H प्लस रिलीज फ्रॉम मैट्रिक्स साइड टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो हियर इज द 4 प्रोटॉन्स, 4 and 2, टोटल कितने हो गए? 10 प्रोटॉन्स. कितने हो गए? 10 H प्लस मूव फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. आप देखो 4 + 4 + 2 टोटल कितने हो गए? 10. इट मीन्स 5 पेयर्स. कितने? 5 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स. ध्यान देना, मूव फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज मोर इन इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस in comparison to the matrix side. Here is the plus charge. It means the concentration of H plus is more in comparison to the matrix side. So therefore क्या हो रहा है? इन कॉम्प्लेक्स 5 में अब आ गया हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात अब यहीं पर शुरू हो जाती है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या हमने बताया था? सिंथेसिस ऑफ ATP. तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, ध्यान देना, फॉर ऑक्सीडेशन of 1 NADH2 pushes 3 pairs of H plus ions from intermembrane space, intermembrane space to matrix regions पर जाएगा. मैट्रिक्स रीजन्स थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स. इट मीन्स इनका जो पेयर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू, ये ध्यान देना, मैट्रिक्स रीजन थ्रू, नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल, थ्रू ATP synthetase complex from higher concentration to lower concentration, from higher concentration to lower concentration to lower concentration. अभी ATP सिंथेटेज में क्या है? हैविंग 2 important elements, they are present in the complex shape F0 and F1. F0 is what? F0 is the channel protein by which pair of protons they can move from higher to lower. And F1, जो F1 होता है, अब इसमें ATP सिंथेटेज में क्या है? 2 हैं. ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या हो रहा है? F0 and F1, ये 2 यूनिट्स आर प्रेजेंट. F0 इज व्हाट? चैनल. ये चैनल एक तरह से चैनल प्रोटीन है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स रीजन. एंड F1 में क्या होगा? इट कंटेन्स ATPase enzyme
एंड दिस एंजाइम्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल किया करेगा? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ध्यान देने की बात है, कितना? फॉर 1 NADH2 पुशेस 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स। कितना? 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन। इट मीन्स हियर इज द चैनल प्रोटीन। अगर ये चैनल प्रोटीन हो रही है, हियर इज द F0, हियर इज द F1। जब यहाँ से 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स जाएंगे, हियर इज द स्टेप बाय स्टेप जाते, एक साथ नहीं जाएंगे, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? 1 ATP के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये भी क्या होगा? 1 ATP के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड ये भी क्या होगा? 1 ATP के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ध्यान देने की बात है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये मूव कर रहा है, तो जब मूव करेगा एट दिस टाइम ATP आर सिंथेसाइज फॉर द ऑक्सीडेशन। जब होगा तो 3 ATP आर प्रोड्यूस from the oxidation of 1ADH2 molecule। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ही बात होती है। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1ADH2 एट दिस टाइम प्रोड्यूसेस 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान देना, प्रोटॉन्स फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू द मैट्रिक्स रीजन through ATP synthetase complex from higher concentration to lower concentration, and 1 pair of the proton is responsible for synthesis of 1 ATP molecule. Therefore 3 ATP molecules generated are synthesized from single NADH2 molecules. Clear? Next, for oxidation of 1 FADH2 pushes 2 pair of proton। ध्यान देना है, 2 pairs of proton from intermembranous space to the matrix region through ATP synthetase complex। सेम होगा। तो यहाँ पर जो हमने आपको यहाँ पर बताया था, तो यहाँ पर ये चेंज थोड़ा सा हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर केवल 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स दे कैन मूव। यहाँ पर क्या हो रहे हैं? 2 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स मूव करेंगे। हियर इज द F0, हियर इज द F1। ओनली 2 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स दे कैन मूव। यहाँ पर मूव हो रहा है फ्रॉम, एंड 1 पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ATP, अनदर पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर ATP। तो टोटल कितना हो गए? 2 ATP और सिंथेसाइज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ 1 FADH2। तो हमने जो पहले भी बात किया था कि 1 FADH2 प्रोड्यूसेस 2 ATP एज वेल एज 1 NADH2 प्रोड्यूसेस 3 ATP। क्यों होता है इसका रीजन भी हमने आपको बताया कि एट द टाइम ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम क्या होता है, जो ये प्रोटॉन्स जो होते हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू F0, F1, दैट इज नोन एज ATP कॉम्प्लेक्स। ये जो ATP कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं ये मूव करते हैं। एट दिस टाइम ATP आर सिंथेसाइज हो रही है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टेड है और समझने की बात हमेशा होती है कि टोटल नंबर ऑफ ATP 1 FADH2 कितना प्रोड्यूस होगा और 1 NADH2 से कितना प्रोड्यूस होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।